Hello students, today we start moment area method. That topic is also covered numericals in MDU exams. Today we discuss about the moment area method. Here you can also see moment area method is also used for slope and deflection, right? Slope and deflection by moment area method. So we discuss few points on slope and deflection by moment area methods. First point is the slope and deflection by area moment method has been suggested more, right? This is another expression method to calculate slope and deflection in case of prismatic member. This method is used for prismatic member to find the slope and deflection. Second point is, in this method, the slope at any point on the deflected curve is defined based upon the Mohr's theorem first. Students, here we use two theorem. First is Mohr's theorem first and second is Mohr's theorem second. By theorem 1 we find the slope and by theorem 2 we find the deflection. So second point ये आपको बता रहा है, in this method the slope at any point on the deflected curve is defined based upon the Mohr's theorem first, right? Third point is the deflection at any point in this method is defined based upon the Mohr's theorem 2, right? So here two theorems is used, Mohr's theorem first to find the slope and Mohr's theorem second to find the deflection, right? This method is found to be good all the cantilever problem and simply supported beam with symmetrical loading conditions. Moment area method किसके लिए suitable है dear students? For cantilever problems and simply supported beams with symmetrical loading conditions, right? Now we discuss about the Mohr theorem first for calculation slope. It states that the difference in slope between at any point on deflected curve is always defined as the area of bending moment diagram between the 2 points divided by the flexural rigidity of the member, right? मोहर थ्योरम फर्स्ट क्या बताती है हमें? ये हमें बताती है कि हम जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है तो उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले हमें बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? और जिस भी पॉइंट्स का हमें स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट के बीच में जितना भी एरिया बेंडिंग मोमेंट कर्व में वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? उससे हमारा क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा, राइट? Define the area of bending moment diagram between the 2 points divided by flexural rigidity, और जो एरिया आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे? फ्लेक्सुअल रिजिडिटी ऑफ बीम। यहाँ पे आप देख सकते हो, here is the beam, which type of beam? Cantilever beam, 2 points A and B. Here we find the slope at B, so here we draw bending moment diagram for this beam. हमने एज्यूम कर लिया कि कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, उसकी शेप आपकी इस प्रकार आई, ठीक है? ये आपकी क्या पैराबोलिक शेप आई। तो इस पे आप स्लोप निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो आप इसमें हमें
एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा अंडर दिस कर्व, ये आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल द एरिया ऑफ बी ए मतलब बिटवीन टू पॉइंट्स बी ए। हमने एरिया कैलकुलेट किया, उसको डिवाइड कर दिया ई आई से, तो वो क्या आ गया हमारा, स्लोप आ गया ऑफ पॉइंट बी का, राइट। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये तो हमने टोटल एरिया लिया है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये बी का ही स्लोप कैसे आ गया? बिकॉज डियर इफ इट difference between 2 point slope theta b minus theta a, that will be the area of 2 points divided by ai. But here you can see, here is the fixed end, right, here is the fixed end. So आपको पता होगा fixed end है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई slope नहीं आएगा. You can see here this curve move, देखिए यहाँ पे कोई आपको स्लोप नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि फिक्स एंड है, कोई स्लोप नहीं आएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, दैट्स वाई थीटा आपको क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है, और आपकी जो थीटा बी की वैल्यू क्या आ जाती है, ए एरिया ऑफ मीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय ई आई, राइट। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी मोमेंट थ्योरम 2, इसके लिए जो होती है आपकी फाइंड द डिफ्लेक्शन। इट स्टेट दैट द टोटल डिफ्लेक्शन बिटवीन any 2 points on the deflected curve is defined as the moment area of bending moment diagram between the points of considerations divided by the flexural rigidity of member, right. So dear students, to find the deflection हमें क्या करना होगा, we taking a moment area, right, मतलब एरिया का हमें मोमेंट लेना पड़ेगा। मोमेंट कैसे लेंगे हम, जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका कर्व के बीच, 2 पॉइंट के बीच में जो हमारा एरिया आया है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, दैट इज द एक्स। तो आपको क्या आ गया, ये मोमेंट एरिया, और डिवाइड किससे कर देंगे, ई आई से, राइट। एरिया ऑफ दिस कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कर्व, जिस जो हमने एरिया लिया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये जो मोमेंट है वो किसका अबाउट देना है, इसके पॉइंट हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। मान लीजिए पॉइंट बी को अबाउट लेना, तो जो डिस्टेंस है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें बी से ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है, व्हाट्स द फिक्स एंड। तो आप यू कैन सी हेयर ए वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये क्या है, ठीक है। एक्स है यहाँ पे डिफरेंट, एक्स क्या देख लीजिए, सेंटर्ड लोकेशन ऑफ द एरिया ए अबाउट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन in case of cantilever, and it is centered location of area A about the end point supporting end point, right. In case of simply supported beam, यहाँ पे आपको बताया कि x का कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से लेना है, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम और इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में हम एंड पॉइंट से शुरू करेंगे, और जो आपका कैंटिलीवर बीम है हम फ्री एंड से शुरू करेंगे, राइट। दोनों बीम के लिए मैंने इसलिए बताया क्योंकि दिस मेथड इज स्टेबल फॉर कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर सिमेट्रिक लोडिंग, राइट, वेयर EI इज कांस्टेंट। तो डियर्स, ये आपका मोमेंट एरिया मेथड्स के कुछ कॉन्सेप्ट था। आपको केवल यहाँ पे मोर्स थ्योरम 1 एंड मोर्स थ्योरम 2 को देखना है। मोर्स थ्योरम 1 आपकी स्लोप फाइंड आउट करने के काम आती है, और मोर्स थ्योरम 2 है आपकी रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए काम आती है। So now we discuss questions on moment area method. Questions: a cantilever beam of length L is subjected to a couple of moment M at the free end. Define the slope and deflection at the free end point using area moment method. Right.
आपका ये क्वेश्चन है, ये बीम है, कैंटिलीवर बीम गिवन है, एट द एंड वी अप्लाइड ए मोमेंट m, राइट, स्पैन ऑफ बीम l। सबसे पहले हमें क्या स्टेप फॉलो करना है, जो आपका बीम गिवन है, जो आपकी, उसका क्या करना है, हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट। डियर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज ऑल बीम्स या ऑल आपका जो भी स्ट्रक्चर क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसका आप इजीली बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हो और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, राइट। यू कैन सी हियर, हियर इज द एनी मोमेंट m, मोमेंट m है, तो हमारा क्या रहेगा, फिक्स एंड है, और एंड पे हमारा मोमेंट m गिवन है, तो डायरेक्टली मोमेंट गिवन है, दैट विल बी द m। तो यहाँ पे कितना मोमेंट आएगा, एंड b पे m मोमेंट आएगा, ऑल थ्रू स्पैन ऑफ बीम हमारा मोमेंट m ही रहेगा टिल फिक्स पॉइंट, राइट। तो ये हमारी जो शेप आएगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, दैट विल बी द रेक्टेंगल, राइट। और कैसा साइन है, मैंने इसमें आपको नेगेटिव साइन गिवन है क्योंकि होगिंग शेप रहेगी। होगिंग शेप कैसे देखोगे आप, व्हेन इट्स एंड मूव about this point, if we consider top face is reference face, so you see that face is hogging, so we take a negative sign, right। Here we find the slope at point b, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मोमेंट एरिया मेथड से, सिंपल है, हमें एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये ए है, तो हमें जो पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स पे एरिया क्या रहेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, ये हमारी कौन सी शेप है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो क्या एरिया आएगा हमारा m इंटू एल, तो एरिया क्या हो गया हमारा m इंटू एल डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना होता है, फ्लेक्सो रिजिडिटी से, फ्लेक्सो रिजिडिटी क्या है, ई आई, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस में डियर फ्लेक्सो रिजिडिटी नहीं गिवन है कि आपकी क्या है, तो आप ई आई मान के ही उसको डिवाइड करोगे, क्योंकि यदि वो मोमेंट एरिया मेथड पूछ रहा है और हमें पता है मोमेंट एरिया मेथड में ई आई कॉन्स्टेंट रहता है, तो आप ई आई से ही डिवाइड करोगे, ये कॉन्स्टेंट है तो आपका ई आई से डिवाइड कर देंगे, राइट। नाउ वी फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो एरिया आया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, कौन सी डिस्टेंस, सेंटर्ड फ्रॉम द बी एंड, राइट, सेंटर ऑफ दिस फिगर या दिस डायग्राम, राइट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो भी सेंटर्ड होगा बी से, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या है यहाँ पे एरिया हमारा वही है एम एल। अब हमें एक्स निकालना है, एक्स बार निकालना है, तो क्या आएगा आपका सेंटर्ड कैसा आएगा, इस पॉइंट से कि पूरा डिस्टेंस कितना एल, रेक्टेंगल है तो क्या होगा एल बाई टू, राइट, डिवाइड किससे करना है, ई आई से, राइट। तो यहाँ पे आपका आ गया डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। डियर, यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे थीटा बी माइनस थीटा ए, राइट, तो यहाँ पे थीटा ए आपका जीरो हो जाता है क्योंकि फिक्स एंड है, सेम हेयर डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए, यहाँ पे आपका डेल्टा ए जीरो हो जाएगा क्योंकि फिक्स एंड है, राइट, डिफ्लेक्शन एट फिक्स एंड पे क्या होता है जीरो, तो आपका डेल्टा बी बचता है, तो यहाँ पे हमने डेल्टा थीटा बी और डेल्टा बी की वैल्यू निकाल दी, दैट्स इजी, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मार्क्स आपका एज पर एग्जाम, गेट एग्जाम के लिए मैंने कराया है, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कैसे हम स्टेप फॉलो करेंगे मोमेंट एरिया मेथड में, राइट। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं, इजीली फॉलो करोगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, राइट। सेम क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आ सकता है गेट में मोमेंट एरिया मेथड में, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, कुछ करना पड़ा कुछ नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर एमडीयू एग्जाम। एमडीयू एग्जाम में आपका 10 मार्क्स
15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा इससे। तो क्वेश्चन देखते हैं। ए कैंटिलीवर बीम ऑफ 6 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल of 4 kilonewton per meter for a distance 2 meter from the free end, and it is subjected to a couple of moment 10 kilonewton at 2 meter from the fixed end, and define slope and deflection at the free end point using area moment method. Right? You can see here question. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा स्केच क्लियर नहीं है, विजुअलिटी नहीं है स्केच की। डोंट वरी, ये मैंने क्वेश्चंस आपको नोट्स में भी गिवन है, तो आप नोट्स को साथ में लेके बैठिए और मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। एक कैंटिलीवर बीम ऑफ 6 मीटर स्पैन, हमारी कैंटिलीवर बीम है 6 मीटर स्पैन है, द स्पैन ऑफ बीम 6 मीटर, राइट। हियर 4 किलोन्यूटन लोड अप्लाइड एट 2 मीटर। हियर 4 किलोन्यूटन लोड, कौन सा लोड है? यूडीएल। कितने मीटर स्पैन पे लगा हुआ है? फ्रॉम द एंड बी 2 मीटर, राइट। 2 मीटर स्पैन पे हमने लोड लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने 10 किलोन्यूटन मीटर कपल ऑफ मोमेंट एक्ट किया हुआ है फ्रॉम द एंड बी से 4 मीटर की दूरी पे, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, तो आप इजीली अपने हैंड से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बता भी दिया, ये फिक्स एंड है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 4 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। कितने मीटर स्पैन पे? 2 मीटर पे। यहाँ हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया है सी, और ये पॉइंट कंसिडर किया है डी। डी पॉइंट है सी से 2 मीटर पे, जो कि जहाँ पे एक्ट हो रहा है हमारा 10 किलोन्यूटन मोमेंट, राइट। ये हमारा फिक्स एंड है जो कि हमने कंसिडर किया ए एंड, ठीक है। क्लियर? तो हियर वी फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। इससे फाइंड आउट करना, मोमेंट एरिया मेथड से फाइंड आउट करना है, तो आप कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बीम का क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे फोकस करते हैं। यू कैन सी हियर, if we start from the point B to find the bending moment diagram, we are taking a moment about 3 मोमेंट लीजिए, क्या आएगा आपका? 4। क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी क्या रहेगा? 0 रहेगा। फ्री एंड है, फ्री एंड पे मोमेंट 0 रहता है कैंटिलीवर बीम में, राइट। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी यू फाइंड that is equal to minus 4 into 2 into 2 by 2, right। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो क्या आएगा? 4 into 2, इतनी अब स्पैन पे लोड लगा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, राइट। जो स्पैन है आपका 2, किसके अबाउट निकाल रहे? 3 के अबाउट निकाल रहे, तो डिस्टेंस कौन सा होगा? 2 डिवाइड बाय 2, राइट। ये कितना आ गया? -8 किलोन्यूटन मीटर। साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि नेचर क्या है? फॉगिंग है। Now we find the moment about the point D. You can see here, moment about the point D, just left, okay, just left to D. तो मोमेंट हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? -4 into 2 ब्रैकेट 1 + 2, राइट। हमारा ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का है मोमेंट, कितना आ गया आपका? 24 किलोन्यूटन मीटर। 4 क्या होगा? किलोन्यूटन आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 2, और आपका 1 क्या है यहाँ पे?
1 आपका 2/2 करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस कहाँ तक हमें मतलब किसके पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, पॉइंट डी पे निकालना है, तो क्या प्लस करोगे 2, ये 2 अब प्लस करोगे 1 + 2, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया -24 किलोमीटर मीटर, राइट। नाउ वी फाइंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट डी जस्ट राइट टू द सेक्शन। तो आपका क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, दैट विल डिनोटेड बाय md2 इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 -10। भाई ये तो डायरेक्टली मोमेंट लगा हुआ है -10, तो यहाँ पे डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वो मोमेंट ही है, तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। कभी कोई स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि सर डिस्टेंस तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मोमेंट है, ऑलरेडी मोमेंट की फॉर्म में है, तो आपको सीधा 10 से मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे माइनस करना होगा, तो क्या आएगा आपका -34, राइट। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि सर हमने यहाँ पे जब MD1 निकाला था जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, यहाँ पे हमने 10 को मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए तो मैंने बोला है आपको कि लेफ्ट ऑफ द सेक्शन एंड जस्ट राइट टू द सेक्शन, जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, राइट। तो पॉइंट है हमारा जस्ट लेफ्ट निकाल रहे हैं, जस्ट राइट निकाल रहे हैं, तो जस्ट लेफ्ट में आपका 10 नहीं आएगा ना, राइट। अभी फाइंड द मोमेंट एट पॉइंट ए, so -4 into 2 ब्रैकेट 2 + 1, राइट। तो ये टोटल देखिए, ये टोटल कितना डिस्टेंस है, ये तो हमारा 4 × 2 हो गया, और 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो गया, 1 + 2 + 2, राइट, मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद क्या बचता है हमारा, नेक्स्ट है हम आएंगे इधर टुवर्ड्स द पॉइंट ए, तो हमारा मोमेंट लग रहा होगा यहाँ पे वो कितना 10, तो हमने यहाँ पे किया -10, कितना आ गया हमारा -50, राइट, 50 किलोमीटर मीटर। ये सारे मोमेंट आ गए, हमने शेप ड्रॉ कर दी अकॉर्डिंग टू मोमेंट, सबका सेम साइन है, नेगेटिव है, होगिंग आ रहा है, तो हमने क्या डाउनवर्ड ड्रॉ किया। ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो शेप क्या रहेगी आपकी, पैराबोलिक शेप रहेगी अप टू द पॉइंट सी, पैराबोलिक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद C to D इट्स भी लीनियर रहेगा आपका D तक। उसके बाद जस्ट आपका स्लोली इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपका जाएगा -34 तक पॉइंट डी पे, राइट। उसके बाद लीनियरली मूव करेगा अप टू द पॉइंट ए, कितना रहेगा 50 किलोमीटर मीटर। 50 किलोमीटर यहाँ पे ए पे रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा 34, यहाँ पे रहेगा 24, यहाँ पे रहेगा 8, राइट, यहाँ पे रहेगा आपका 0। क्लियर, सिंपल है स्टूडेंट्स। जिसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना आता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। जिसको बेंडिंग मोमेंट ही नहीं निकालना आता है, अभी तक वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आप जितना आप इससे बचोगे उतना ही सामने आएगा आपके, राइट। सो नाउ वी फाइंड द स्लोप। स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप क्या होगा, हमें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। और ठीक है, तो हम यहाँ पे बी थीटा बी माइनस थीटा ए बिटवीन 2 पॉइंट्स है, उसके जितनी भी हमारा जो भी एरिया आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, उसका हम एरिया निकाल लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमने पॉइंट सी थीटा बी माइनस थीटा सी क्यों नहीं किया। यार इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि यहाँ पे थीटा सी हमारा 0 नहीं होगा, राइट। तो थीटा सी तो हमें, यदि थीटा सी यहाँ पे 0 हो जाता तो हम ये ले लेते, बट हमें इसलिए हमने थीटा ए लेना पड़ा क्योंकि हमें पता है कि फिक्स एंड पे क्या होता है, स्लोप 0 होता है, तो दैट्स व्हाई वी टेक थीटा बी माइनस थीटा ए। क्लियर, तो नाउ वी कैलकुलेट थीटा बी। टोटल एरिया निकालना पड़ेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स बी ए, राइट। तो ए हम सारे एरिया का समेशन कर देंगे, A1 + A2 A3 A4 A5 मीन्स A1 आपका क्या है, दिस एरिया क्या है A1, ये अप टू पॉइंट सी, राइट, A1 हो गया। उसके बाद A2 एरिया है आपका, A2 एरिया कौन सा हो गया, पॉइंट सी से ए तक, जो आपका यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे,
जो आपका एक रेक्टेंगल शेप देगा, इसकी हाइट क्या रहेगी 8 किलो न्यूटन, ये हाइट क्या रहेगी 8 किलो न्यूटन और लेंथ क्या रहेगी 4 मीटर, राइट। ये आपका A2 एरिया हो गया, ध्यान से देखना इसमें, राइट। उसके बाद A3 एरिया कौन सा हो गया आपका C2D, C2D, C से स्टार्ट हुआ और D तक गया। इसकी जो हाइट रहेगी ये आपका ट्रायंगल फॉर्म में रहेगा। देखिए ये आपका एरिया कवर हो गया, इससे नीचे, इस लाइन से नीचे आपका सारा एरिया कवर हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। अब हमें एरिया ये कवर करना है, दिस वन। तो ये क्या आपका ट्रायंगल शेप आ रही है, इसकी हाइट क्या रहेगी आपकी, ये आपका हो गया 8 हो गया। ये आपका कितना है, यहाँ पे कितना है 24 है, और यहाँ कितना है 8, इजिली हाइट निकल जाएगी। और ये हमें पता है ये 2 मीटर, तो ये A3 एरिया हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज A4 from this point we draw the line, right, and this height is 24 to 34। ये आपकी हाइट होगी A4 की। ये आपकी कौन सी शेप दे रहा है, ये आपका रेक्टेंगल शेप देगा। तो ये कौन सा एरिया हो गया A4 हो गया। एंड नेक्स्ट वी मूव D2A, D2A मूव करेंगे तो ये जो आपका यहाँ से 34, जो हमारा मोमेंट आ रहा था यहाँ पे 34 से लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा। तो ये हमारी कौन सी शेप फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ट्राइंगल शेप फॉर्म हो रही है, दैट वी डिनोटेड बाय A5, राइट। तो ये हमारे 5 एरिया है, उनको प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ गया बिटवीन 2 पॉइंट्स BA। वही मैंने किया है यहाँ पे, देखिए A1 A2 A3 A4 A5। A1 क्या है हमारा, ठीक है, एरिया है, पैराबोलिक एरिया है, तो हम लेंगे इसका एरिया 1/3 इंटू 2 इंटू 8, राइट। A2 क्या आपका रेक्टेंगल शेप है, तो लेंथ इंटू विड्थ 4 इंटू 8। A3 क्या है आपका, A3 क्या है ट्राइंगल शेप का, तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू 24 माइनस 8। ये क्या हाइट हो गई आपकी भाई, 8 बिलो पॉइंट है और 24 अबव पॉइंट है, यू कैन सी इन दिस फिगर हियर। A3 है, हाइट ये है अपनी, हाइट कैसे निकलेगी, दिस पॉइंट वैल्यू हमें पता है 8 है, ये कितनी है 24, तो माइनस करेंगे ये हाइट आ जाएगी। तो ये हमें पता ही है, इसका बेस पता ही है 2 मीटर, राइट। यहाँ से हम इजिली एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, निकल गया हमारा 1/2 इंटू 2 इंटू 24 माइनस 8, राइट। प्लस A4 निकालिए। A4 कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप है, तो ये हाइट कितनी होगी 24 और 34 माइनस 24 कितना बचा वो, ठीक है 10 और ये डिस्टेंस कितना है 2, राइट। सॉरी, you can see this area is from this, बिकॉज ये पोर्शन तो हमारा रह ही जाएगा। तो ये जो एरिया A4 है यहाँ से आपका ये एरिया कवर करता है A4, सो यू कैन 34 माइनस 8 दिस हाइट। देखिए अभी ये लेते तो आपका ये एरिया आपका रह जाता, ये आपको फिर से प्लस करना पड़ेगा, तो हम सीधा डायरेक्टली पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल ले लेंगे दिस वन एंड प्लस कर देंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ओके। उसके बाद है A5 हमारा ट्राइंगल है, तो यू टेक इट ट्राइंगल एरिया 1/2, लेंथ कितना है 2 मीटर, 50 माइनस 34 उसकी हाइट हो गई। तो ये एरिया आ गया। एरिया को हम डिवाइड किससे कर देंगे, EI से, EI से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, स्लोप आ जाएगा, राइट। सिंपली क्वेश्चन हो गया सोल्व। नाउ वी फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B। डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, जो एरिया आया है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे सेंट्रोइड से, फ्रॉम द पॉइंट B। सेंट्रोइड कहाँ से लेगा, फ्रॉम द पॉइंट B। तो आप देखिए एरिया हम पूरा एक ही सेंट्रो, हम एरिया को पूरे एक ही सेंट्रोइड से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट शेप आ रही है हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में।
हम एज इट इज इसको डिवाइड करके प्लस कर देंगे, ठीक है। a1 x1 सेंटर लेंगे प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस a5 x5 डिवाइड बाय ei, ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन। सो यू कैन सी a1 हो गया आपका एरिया, एरिया जो भी है हमने इसमें निकाला था वही एरिया रहेगा 1/3 2 इंटू 8, राइट। प्लस आपको मल्टीप्लाई किससे करोगे, सेंट्रोइड से, सेंट्रोइड क्या आएगा 3/4, ये आपकी पैराबोलिक शेप है तो यहाँ से 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। प्लस a2 आपका सेकंड स्केच का डायग्राम है, ठीक है, सेकंड एरिया का डायग्राम है, हमें रेक्टेंगल है। अब देखिए x2 कैसे निकालोगे, यहाँ पे x2 कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक है x2, मैंने शो कर रखा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है x2, कैसे निकालोगे 2 प्लस ये आपका कौन सी शेप आ जाती है, रेक्टेंगल शेप आ जाती है, तो यहाँ पे कितना है ये 4, 2 प्लस 4/2, 2 प्लस 4/2, सेम एज इट इज डू हियर 2 प्लस, नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये ट्राइंगल आ जाता है, यहाँ से हमारा सेंट्रोइड क्या रहेगा, ट्राइंगल 2/3 बाय मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या करना पड़ेगा हमें 2, क्योंकि यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, सेम एज इट इज a4 के लिए हमने लिया और a5 के लिए डिवाइड कर दिया हमने ei के लिए, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। डियर इस मेथड में कुछ नहीं है, सिंपल मेथड है और 15 मार्क्स आपको इजीली आप अचीव कर सकते हो और क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना आता है और कुछ केवल ये स्टैंडर्ड है उनका, आप सेंट्रोइड देख लीजिए यदि आपको नहीं पता होगा कि भाई सेंट्रोइड किस पॉइंट पे लेते हैं, पैराबोलिक का सेंट्रोइड किस पॉइंट पे लेते हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल का यदि हम अवे टू 90 डिग्री चल रहे हैं तो क्या रहेगा सेंट्रोइड का, रेक्टेंगल का तो आपको पता ही है। तो ये आप देख के चलिए, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए कैसे बनाना है, उसके बाद एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूले, इसमें कोई टफ फॉर्मूले यूज नहीं किया हमने, और सेंट्रोइड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये 3 चीज याद रखनी है आपको, कुछ नहीं है इसमें, राइट। यू कैन सी दिस क्वेश्चंस आल्सो। A simply spotted beam of length L is subjected to a uniform distributed load of W per span, जो स्पेन आपका L है over the entire span, define the value of slope at a spotting and at a the deflection at center of span using moment area method, right. So you can see questions, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, राइट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। हियर वी ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो क्या आएगा आपको, क्यूबिक पैराबोला आएगा, पैराबोला, ठीक है, यहाँ पे आपका उसके बाद जस्ट लाइक दिस, हियर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा आपका WL²/8, यू कैन फाइंड इजीली। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्लोप, फाइंड आउट करना है एट पॉइंट बी या ए, ठीक है, बी पे फाइंड आउट कर सकते हो, ए पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यदि हमें ए पे फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें एरिया लेना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट कर्व का। अब एरिया में कौन सा लेना पड़ेगा, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहाँ पे एरिया हम बिटवीन ए और बी पॉइंट का लेंगे, बट क्या है, आप ऐसे आप इस प्रॉब्लम को बड़ा कर लोगे, राइट, बड़ा कर लोगे और ऐसे हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि क्या, यदि आप थीटा बी माइनस ए करोगे तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं हो रहा, नहीं तो थीटा बी जीरो होगा और नहीं थीटा ए जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड क्या है, सिंपल सपोर्टेड एंड है हमारे बीम की, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका स्लोप भी आएगा और डिफ्लेक्शन भी आएगा। दैट्स व्हाई हियर यू कांट टेक theta b minus theta a, you take a point C, because here you can see, here is slope of this, here you can see slope of this
beam at point C is 0 because your curve is flattened, right? So that point C point is slope is 0. So you can take theta A minus theta C. Okay. So find the area between points A and C of this bending moment diagram. Take just uh, point A or C left to the C point. Okay. So theta A minus theta C, here theta C equal to 0, equal area is 2 by third L by 2. Here is half span L by 2 WL square by 8 divided by EI equal WL cube 24 EI. Right. This is the slope of point A. Theta C equal to theta delta A plus delta C equal to A x bar EI. Right. Here we multiply the centroid. सेंट्रोइड मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 5/8 बाय मल्टीप्लाई बाय एल बाई 2 ये द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन राइट। तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया 5/8 एल बाई 2 पे। तो ये आपका क्या आ गया डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट ए 5/384 WL4 बाय ई आई। सिंपल है, कोई इसमें टफ चीज यूज नहीं की हमने, सिंपल वही एरिया निकाला है, एरिया को आपने मल्टीप्लाई कर दिया सेंट्रोइड से, तो सिंपल आपका आ गया यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन सिंपल स्पॉटेड बीम के लिए। So we learn once again important points of this slide. Moment area method use, or you can say based on two theorems, Morse theorem 1, Morse theorem 2. Morse theorem 1 is used for to find the slope and Morse theorem 2 is find the deflection. Morse theorem क्या बोलती है आपका, जिस पे हमें स्लोप निकालना है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और जिस पॉइंट्स का हमें स्लोप निकालना है तो बिटवीन देम हम क्या ले लेंगे एरिया ले लेंगे, एरिया को किससे डिवाइड कर देंगे EI से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा स्लोप। डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे दैट्स डिफाइंड बाय द मोर्स थ्योरम 2। तो एरिया आया, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे सेंट्रोइड से तो आपका क्या आ गया वो डिफ्लेक्शन आ गया राइट। उसके ऊपर हमने क्वेश्चन सोल्व किए, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन इसी टाइप्स के आएंगे, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे सर बस ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हाँ बिल्कुल सिंपल टाइप इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज प्रैक्टिस ऑन दैट। टेक केयर, टिल देन बाय।